और वो उसके जवाब में एक दूसरा रोमांटिक शेर पढ़ता है। इसका मतलब उन दोनों के बीच कोई रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं है, वो सामने बैठे हुए 15-20 हजार लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कुमार विश्वास जी, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आप अपोलोजाइज नहीं। कुमार विश्वास जी, या तो आप कह रहे हैं कि मैंने गलती की, या फिर आप कह रहे हैं कि मैंने गलती नहीं की। आप जिस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि मैंने गलती नहीं की। पहली बात कह रहा हूं जी, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। आपके साथ आप अपनी बात मुझसे कहवाना चाहेंगे तो मैं पूरी टाइम नहीं कह पाऊंगा। मैं केवल ये बात कह रहा हूं कि वो बात पॉलिटिकली इनकरेक्ट थी, उसका कोई मोटिव नहीं था। दैट वाज प्योर फन, दैट वाज ए प्योर ह्यूमर एंड इट वाज टेकन इन दैट वे फॉर डिकेड्स। 2013 से लेके 2003 से लेके 13 तक सबने मजे लिए, 10-20 लाख हिट हुए लोगों के मोबाइल में गए। Are you surprised? Are you surprised today? Are you surprised today? अगर टाइम्स नाउ बोलने का मौका नहीं देगा तो मेरा आना बेकार है अमेठी में। मैं सड़कें छोड़ के आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैं पूरी बात ना कह पाऊं। नहीं, आप बात जरूर रखिए। जो कि पॉलिटिकली इसका मोटिव नहीं था, उसके लिए मैं माफी चाह रहा हूं। लेकिन मैं ओमान चांडी से कोई माफी नहीं मांगूंगा। मैं कांग्रेस के उन गुंडों से माफी नहीं मांगूंगा जिन्होंने हमारा दफ्तर छोड़ा है, विजाग में हमारा दफ्तर तोड़ा है। मैं उन गुंडों से माफी नहीं मांगूंगा जो मेरा पुतला जला रहे हैं कांग्रेस के लोग। मैं उन गुंडों से माफी नहीं मांगूंगा जो अमेठी में अपने युवराज को हारते हुए देखकर मेरे खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान के किसी आदमी से आप मुझे कहिए, मैं 1000 बार माफी मांगूंगा, चौराहे पर खड़ा होकर मांगूंगा, पैर छूकर मांगूंगा अपनी उन सब टिप्पणियों के लिए जो आपने इनकरेक्ट थी, जिनका कोई मोटिव नहीं था। और फिर मैं कह रहा हूं कि एक भी कविता ढूंढ के लाइए अगर मैंने किसी के खिलाफ कोई बात कही। मैंने जो कमेंट देखा छोड़ दूंगा और कल मैं अमेठी से वापस चला जाऊंगा। नहीं, मैंने जो कमेंट देखा, that was not poetry. Arnab Goswami should read Hindi poetry. Well, one second, this is not a question about poetry. I really think, Kumar, that the comments which you are quoted to have said, which of other video which are there. Now you see what happens is, Kumar, please understand and don't respond angrily. When a group of people join politics. No, I'm not responding. No, one second. Please understand. You see, the Aam Aadmi Party now gets upset. Now, when we ask, Somnath Bharti says about women who are Afro-American, he says, ये हम और आप जैसे नहीं about Somnath Bharti. No. Again, you are taking I'm not asking you about Somnath Bharti. I'm not asking you about Somnath Bharti. No, I'm not asking you about Somnath Bharti. Allow me to complete, please. No, I am not asking you about Somnath Bharti, but I am telling my viewer that Somnath Bharti says that ये हम और आप जैसे नहीं हैं. In other words, these people from Uganda, हम और आप जैसे नहीं हैं. They are not like you or me, right? Now what happens is, when these comments are made, no, 1 minute. I don't know. One second, Kumar, please understand. I think you have to. लाइट नहीं है. राहुल गांधी से पूछिए क्यों नहीं है. My dear, is Kumar Vishwas. आपकी वैन भी जनरेटर से चल रही है. Kumar Vishwas, you see, please understand. Please, first of all, the answer to everything is not saying ask Rahul Gandhi, because you know that when Rahul Gandhi made a comment on Bhatta Parsol, right, a couple of years back, when he made that comment and he was proven to be wrong, okay, Aam Aadmi Party did not even exist as a political party then. Was he attending a Kavi Sammelan that day? 1 minute. He was doing a Kavi 1 minute. No. 1 second. Please, Kumar, now you have this. You can't have this. You don't let me complete, and that's not appropriate. So just a minute, please. What I'm saying to you, Kumar, is this, and now you see, Kumar, you must remember this. Now, what you're saying is, do you ask questions to other people? So I have just proven to you right now, quite clearly, with that one example, that even before the Aam Aadmi Party was born as a political party, the media has consistently been asking political parties and political leaders questions on what they have said. Therefore, since you have become politicians, you should not be surprised that we will ask, how is Somnath Bharti using that language? How is Kumar Vishwas saying this? Did he say this? Did he mean this in 2008? Why did he make this comment then? Was there an underlying element of racism or racist stereotyping or religious intolerance exhibited in any of the two or three of these comments? What you're saying, and I'll just take 15 seconds to respond, is there will be 1,000 videos of what I've done in the past, when I have taken to the stage as a poet, when I may have said things that upset a lot of people. Now, I'm not asking you about general jokes. I'm not asking you, Kumar Vishwas, what jokes you made on me. I am asking you only and only about these two comments. My question to you is very simple, and I'll close after this. Will you in the future, right,
As a politician, very often politicians like to play to the gallery. Play to the gallery को हिंदी में क्या कहते हैं उसका I don't have the exact translation, but you know what I mean. That very often a politician tries to play to the gallery, say something that just makes him popular. You know, get a little bit of applause, get a few claps. Will you, Kumar Vishwas, ever say anything of this kind that has been quoted, that you have been quoted to have said? Have you learnt your lesson in that sense? The things you said as a performer, will you repeat ever as a politician? Yes. मुझे उम्मीद है कि अर्नब गोस्वामी मेरी बात सुनेंगे। जी, सुन रहा हूं। सबक सीखा कि अगर आप कलाकार हैं तो आप केवल चूरन बेचिए, आप केवल च्यवनप्राश बेचिए, आप सबके प्रोग्राम में जाइए, आप अपने आप को फिर से जस्टिफाई कीजिए, सम्मान ले लीजिए और केवल लड़िए मत, भ्रष्टाचार के खिलाफ मत खड़े होइए, वंशवाद के खिलाफ मत खड़े होइए, मजे में रहेंगे, बड़े पुरस्कार मिलेंगे, विदेश में दौरे होंगे। अगर आपको ये बेचैनी है कि नहीं मैं तो अब जाऊंगा बाहर, मैं तिरंगा उठाऊंगा, मैं नारा लगाऊंगा, तो तैयार रहिए तो फिर 150 मुकदमे आपकी जान को तो फिर ये जो आपने परसों और आएंगे जो मुझे सूचना मिली है, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जिस के आएंगे, ब्राह्मणों पर मैं खुद ब्राह्मणों जोक सुनाया है, अग्रवाल महासम्मेलन में जोक सुनाया, वो सब आएंगे। जोक नहीं, ये जोक नहीं है। दो लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, एक स्टैंड अप आर्टिस्ट है, बहुत बड़े कॉमिक और कांग्रेस में है, दूसरे अभी अभी भाजपा में चले गए हैं। एक ने क्षेत्रीय भाषा के खूब अश्लील गीत गाए हैं, खूब द्व्यर्थी गीत गाए हैं, दूसरे चैनल पर बहुत स्टैंड अप कॉमिक करा और खूब सारी बातें कही हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होगी। मैं जानता हूं, मैं स्कैनर में हूं और शेर सुनिएगा अर्नब गोस्वामी साहब, आपके दर्शकों को आनंद आएगा। आप देखिए, मैं देखिए ये तो देखिए कुमार विश्वास जी, अगर ये कवि सम्मेलन होता तो मैं आपको कहता, नहीं एक मिनट, अगर ये कवि सम्मेलन होता, एक मिनट, ये मेरा प्रोग्राम है, ये कवि सम्मेलन नहीं है। एक मिनट कुमार विश्वास जी, प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपको सिर्फ एक सीधा सवाल कर रहा हूं और देखिए कुमार विश्वास जी, ये न्यूज आवर प्रोग्राम है, ये न्यूज प्रोग्राम है, ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि कविता सुनूंगा आपकी। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सीधी तरह से पूछ रहा हूं, आप मेरे सीधे प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये है, मैं तो ये मानता था कि कुमार विश्वास, जब सीधे सवाल किए जाते हैं कुमार विश्वास से तो सीधे जवाब आते हैं, मगर मुझे आज लग रहा है कि मैं सीधे जवाब सवाल पूछ रहा हूं और आप कविता पढ़ रहे हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मैंने सीधे सवाल, पॉलिटिकल सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल एक पॉलिटिशियन को मैंने पूछा और आप मुझे कविता पढ़ रहे। मैं एक मिनट, मेरा सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल ये है, और लोग देख रहे हैं कुमार विश्वास जी, लोग देख रहे हैं कि कुमार विश्वास इसका सीधा जवाब देंगे या नहीं देंगे। मेरा सवाल सुन लीजिए और मेरा सवाल ये है, लोग सचमुच देख रहे हैं अर्नब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह के कमेंट आपने जैसे शिया कम्युनिटी के बारे में या फिर केरल के औरतों के बारे में किया, क्या आप कभी भी इन पब्लिक लाइफ ऐसे कमेंट्स करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सवाल है, आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए, बिल्कुल सीधा उत्तर है, लेकिन पूरा सुनिएगा आप। पहली बात तो जिस कम्युनिटी के बारे में आप बात करें वो एडिटेड वीडियो है, उसे भाजपा के ऑफिशियल हैंडल ने डाला है, वो पूरा वीडियो प्ले करिए। पहले भी आप मेरा एक वीडियो प्ले कर चुके हैं जिसमें एक सेंटेंस काट दिया गया था कि कैश दो या चेक दो, मुझे तो टैक्स देना ही है और मुझे तो टैक्स देना ही है, काटकर टाइम्स नाउ ने डिक्लेयर कर दिया था कि कुमार विश्वास तो ब्लैक मनी ले रहे हैं। नहीं, तो ऐसा आप मेरे नहीं, देखिए कुमार विश्वास जी, कुमार विश्वास जी ये नहीं, देखिए कुमार विश्वास जी, आप खुद प्रोग्राम पे थे, आपने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सारा वीडियो दिखाया गया, मगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कुमार विश्वास जी। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, आप ले नहीं रहे उत्तर, आपको बीच में आपको लग जाता है कि नहीं ये तो वो बात नहीं हुई जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये तो होगा नहीं अगर अर्नब गोस्वामी जो कहना चाहे मैं वो सुर में मिला लूं। मेरे सवाल को आपने भी सुना, मैंने भी आपसे कह रहा हूं कि स्क्रिप्ट जो थी, मैं फिर बारे में कह रहा हूं, स्क्रिप्ट जो थी वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है, वो सारे कॉमिक आर्टिस्ट करते हैं, कपिल का शो आता है उसमें सारी चीजों के बारे में बोला जाता है, उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता है। उसके बाद भी अगर किसी की भावना आती तो मैं 1000 बार माफी मांग चुका हूं, 2000 बार और मांगूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी के चुनाव की घोषणा से ठीक पहले देश भर में 150 मुकदमे ये लोग लिखवाएंगे तो इससे ये भ्रम छोड़ दें कि मैं इस बात से डर जाऊंगा, विचलित हो जाऊंगा। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि हिंदुस्तान के किसी परफॉर्मर आर्टिस्ट में कोई परेशानी नहीं है, आज तक भी कोई परेशानी नहीं थी। 10 साल से मोबाइल में लेकर घूमते थे, इन्हीं जुमलों को, इन्हीं बातों को हंसते थे कि यार बड़ा फनी आदमी है, बड़ा अच्छा वातावरण क्रिएट कर देता है। और आखिरी बात अर्नब गोस्वामी साहब, आप बांग्ला से आते हैं, असमिया से आते हैं, हिंदी के अपने दोस्तों से कहिए मेरे दोनों काव्य संकलन की एक एक लाइन पढ़ें। अगर एक लाइन किसी कम्युनिटी, वर्ग, धर्म के विरोध में निकल आए तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा,
जिसमें पोइट्री भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है। कांग्रेसी खुश हो जाए, तुरंत अपने सारे साहित्यकारों को लगा दें काम पे। तो क्या आप अपने अपॉलॉजी को वापस लेते हैं? मैंने जो कविता लिखी है जिसमें मेरा काम तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं, नहीं, क्या आप अपने अपॉलॉजी को वापस ले रहे हैं? व्यवहार से किसी बिल्कुल नहीं लेता, आप रख रहे हैं, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, मेरे क्रिया व्यवहार से अगर किसी को भी आहत हुआ है तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूं। 100 बार कह रहा हूं, आपके कहने से वापस नहीं लूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई लोग इसका पॉलिटिकल मोटिव में इस्तेमाल करेंगे तो उनको देश दिल्ली में भी सबक दे चुका है और देश में भी देगा। दिल्ली में भी बहुत कोशिश की थी उन्होंने यही सब फैलाने की। अरे भ्रष्टाचार पर बात करो, 2G पर बात करो, कोयले पर बात करो, मेरी कविता लेके और मेरे बीच के जुमले लेके अगर अमेठी में चुनाव लड़ने आए तो अमेठी के लोग बता देंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। कुमार विश्वास जी, मीडिया आपको पूछ रही है सवाल, आखिरी सिर्फ एक चीज आपको कहना चाहूंगा मैं आप मेरी बात सुन लीजिए कि आजकल आम आदमी पार्टी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन रही है। आपको मैं कह रहा हूं कि आजकल कोई आम आदमी पार्टी के साथ डिसएग्री करे, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, डिसएग्री करे, तीखा सवाल पूछे, तो जिस तरह से उन सवालों पर आम आदमी पार्टी या उसके कार्यकर्ता पहले कहते थे कि कितना अच्छा सवाल है, तो आजकल आम आदमी पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं, प्रोग्राम्स पे नहीं आते। आप तो आते हैं और इसकी तारीफ करता हूं मैं, मेरे कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं तारीफ करता हूं कि आपने आज मेरे सवाल लिए, मगर आम आदमी पार्टी के हर लीडर को आना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये जो 2G CWG स्कैम्स के बारे में आप कह रहे हैं कुमार विश्वास जी, ये आपके और मेरे बीच में नहीं है, मगर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले, अरविंद केजरीवाल के पहले, आम आदमी पार्टी के पहले, कई महीने और सालों पहले मीडिया इन स्कैम्स को उठा रही थी। तो मीडिया का तो काम ही है सवाल करना। बिल्कुल मानता हूं, मीडिया का तो काम ही है सवाल करना। मैं असहमत नहीं हूं, मेरा सिर्फ इतना कहना है अर्नब गोस्वामी जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप केवल ये देखें कि अगर मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिसको आपको रिपीट करना चाहिए एक सीजन शो के नाते, अगर मेरी कविता की एक पंक्ति, कविता मेरा सृजन है, वो मेरी क्रिएशन है, वो मेरी भावना है, असली भावना वही है, अगर एक पंक्ति निकाल के ला दें जो कौमी एकता के लिए ना हो, मैंने सारी कविताएं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लिखी हैं और उसके लिए खूब विरोध सहा है, विदेश में भी सहा है, और अगर एक कविता ऐसी ला दें जिसमें किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करी हो, तो मैं इतनी बड़ी घोषणा कर रहा हूं जो शायद कोई पत्रकार उसके बारे में तो मैंने कोई सवाल किया ही नहीं। अब देखिए कुमार विश्वास जी, कुमार विश्वास जी, एक मैं आपको बात कहूं, आपके कई क्वालिटीज हैं, आपके कई जो है विचित्र क्वालिटीज हैं जिसकी मैं और प्रशंसा करता हूं। एक क्वालिटी आपकी ये भी है कि जो सवाल मैंने किया ही नहीं उसका आपने उत्तर दे दिया कुमार विश्वास जी, क्योंकि आपने सवाल ऐसे करने चाहे जिसमें आपकी अपनी सोच प्रदर्शित होती है, मगर आप कहना चाहते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कुमार विश्वास, कवि सम्मेलन सुनकर देखिए, बट कुमार विश्वास आमंत्रित करता हूं, आप 5 कवि सम्मेलन। Now कुमार विश्वास is giving a good fight to Rahul Gandhi in Amethi, and you know, I'm very grateful and happy that you've come on the program and that you've given your point of view. Kumar Vishwas, it's always good to talk to you on Times Now. Thank you very much. बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you.